is All India Radio. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद गौरा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अब हेडलाइंस के साथ है गौरा धवनलाल। Thank you, Sonu. A quick look at the headlines. Industrial production rises 19.1% in May this year. Retail inflation eases to 7.01% for the last month. Sensex falls below 53,900 points. Nifty slips below 16,100 level. Rupee dips to 79 rupees and 60 paise against the US dollar. And Brent crude prices decline 4.5%. देश का औद्योगिक उत्पादन इस वर्ष मई में 19.1% की दर से बढ़ा। जून माह के लिए खुदरा मुद्रास्फीति की दर मामूली गिरावट दर्ज करती हुई 7.1% पर आ गई। सेंसेक्स 53,900 के नीचे और निफ्टी 16,100 के नीचे हुए बंद। रुपया डॉलर के मुकाबले गिरावट दर्ज करता हुआ 79 रुपये 60 पैसे प्रति डॉलर पर दर्ज हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य 4.5% कम हो गया। और अब आज की जो प्रमुख मैक्रो इकोनॉमी से जुड़ी हुई खबरें हैं आपके पास हैं गौरा। That's right, Sonu. Retail inflation based on the Consumer Price Index CPI eased to 7.01% in June compared to 7.04% in May this year, as per the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today. Inflation eased marginally, mainly due to easing prices in food and beverages. In June 2022, inflation in the food basket came at 7.75% compared to 7.97% in the preceding month. Surging global commodity prices due to the Russia-Ukraine war and high crude oil prices have kept inflation above the RBI 6% upper tolerance range. The government has mandated that the central bank maintain retail inflation at 4% with a margin of 2% on either side for a 5-year period ending March 2026. And the Index of Industrial Production, IIP, growth zoomed to 19.6% in May, as against 7.1% in April. According to the data released by the National Statistical Office released today, the manufacturing sector's output grew 20.6% in May this year. In reported period 2022, the mining output climbed 10.9% and power generation increased 23.5%. उदयन, कैसे देखते हैं आप इन आंकड़ों को? आईआईपी मई 19.6% आज अगेन 7.1% इन अप्रैल, और जो बारीकियां हैं उस पर तो हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये जो आंकड़ा है 19.6% का, इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, स्पेशली ये देखते हुए कि मार्च में 1.9% था। सो जो क्लाइंब है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये इसकी उम्मीद हो रही थी, ये इतना बड़ा फिगर है और ये बेस इफेक्ट के लिए माना जा रहा था। और आपके मुद्रास्फीति और आपके जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, ये उम्मीद के आसपास ही आता हुआ नजर आ रहा है। और तो इसमें कोई सरप्राइज मुझे नहीं लगता कि मार्केट को होगा। और अब क्योंकि 2020 से हमेशा अब उतार चढ़ाव रहा है, तो जब भी इस टाइप से ग्रोथ रेट निकलता है उसमें एक एनोमली सी दिखती है, कभी बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी बहुत कम हो रहा है। और आप यही इशू आप हमारे देश में ही सिर्फ नहीं है, आप विदेशों में भी पाएंगे। आप पाएंगे कि अमेरिका में जो मुद्रास्फीति की दर है, वहां पे भी आप एकदम से थोड़ा सा नरमी और कमी देखने को आपको मिलेगी, सिंपली बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट। तो ये कुछ चीजें जो हैं ये स्टैटिस्टिकल क्वर्क्स हैं, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी इकोनॉमी रिकवरी में है, मेंड में है। पर ये एक अभी भी वो जो रिकॉर्डिंग में जो किंक्स हैं वो अभी भी दर्शा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल इतना 2020 और 2021 बड़े abnormal से years थे। Udin, do you think that the area of consumer and non-durables, which went up by a meager 0.9%,
representing a challenge for consumption revival and important indicator for GDP. Do you think that's an area of concern? No, I think it's probably a little early to get too concerned. Actually, what's happening is from irrational exuberance, if I am allowed to use the word, it's an oft-used term. Right. There's an irrational pessimism at the moment. I mean, in some quarters, there is one segment which will keep insisting that things will get back to the old glory days of, say, 2021, etc., etc. And it's just more of sentiment and feelings. But actually, the truth actually is somewhere in between, and we have just opened up our economy. I mean, the services sectors have opened up. People who are not being able to work things out, they are starting to work things out. So there is a very uneven sort of an impact of what has happened in the last 2 years. And there's some areas which are doing very well, some areas which are not doing well, some areas which is a concern. So making a sweeping generalization is going to be tough. But coming back to consumer durables, the proof of the pudding will lie in eating. And you will have to wait till, say, about the festival season to get a sense of where this whole trajectory has gone. We have opened up a little later, and others have opened up faster. I'm talking about the West. So therefore, and some other people are going through other kinds of issues like in China. So it's very important for us to not get overly influenced by some of the narratives that are coming, say, from Western countries. They have a different dynamic and we have our own. Yes, of course, we are linked with them and we are linked with the East, but I suppose there's somewhere a moderation is required. So, उद्यन, जैसा आप कह रहे हैं कि बेस इफेक्ट भी होता है, काफी स्टैटिस्टिकल रीजंस भी होते हैं, बट अगर हम ओवरऑल देखें, कैपिटल गुड्स में 54% इंक्रीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, नॉन ड्यूरेबल्स में जैसे अभी बताया गौरा ने, सिर्फ 0.9% ग्रोथ हुई है, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 58% ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग मोर देन 20%, इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ मोर देन 23.5%. आपको लगता है कि जो सरकार का फ्रंट लोड करने का अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उनकी स्ट्रैटेजी है, उसकी वजह से भी आपको लगता है कि शायद इन्वेस्टमेंट और जो ग्रोथ है वो बरकरार है, लेकिन शायद कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स एक इंडिकेशन दे रहा है कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस की वजह से शायद हाथ पीछे खींच रहे हैं कंज्यूमर्स? वो थोड़ा बहुत तो जरूर हो रहा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, और ये बाद में हमें और अच्छी तरीके से मालूम चलेगा. रूरल एरियाज में वहां पे एक फ्लैटनेस सा है, वो कभी थोड़ा सा पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाता है, कभी नहीं आता है. तो बट देन जहां पे एग्री रिलेटेड इकोनॉमीज है, उनके साइकिल्स क्रॉप से रिलेटेड होते हैं, तो क्योंकि उनके साइकिल्स छोटे हैं तो आपके एक लंबा हिसाब किताब नहीं होता. मान लीजिए आप एक गाड़ी बना रहे हैं, उसका जो पूरा साइकिल है वो थोड़ा सा लंबा होगा, जबकि अगर एक क्रॉप का जो साइकिल है वो छोटा होगा. बुआई से लेके आपको रियलाइजेशन तक एक ही सीजन में आपका रिजल्ट निकल आता है. तो वो वहां से उम्मीद भी है, वहां पे एक चैलेंज भी है. तो जहां तक नॉन ड्यूरेबल्स था वो उतना इम्पैक्ट हुआ नहीं था कोविड के, मेरे ओपिनियन में. जो नॉन ड्यूरेबल्स हैं वहां पे एक चैलेंज बना हुआ था, क्योंकि वो लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, खरीदारी नहीं करवा रहे थे, हाथ खींच रहे थे. तो एक तो पेंट अप डिमांड था, जो कि लोगों ने भरपूर खरीदारी की थी, पेंट अप डिमांड से हुआ. जब वो पेंट अप डिमांड निकल जाता है तब सवाल उठता है कि अब जो है वो क्या हम 2019 लेवल, क्योंकि वो हमारा बेंचमार्क है, नॉर्मल था, क्या हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं. तो मुझे जहां तक अंडरस्टैंडिंग है कि वहां तक हम पहुंच गए हैं. अब सवाल वहां पे रहने का नहीं है, हमें वहां से काफी आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ एक तबके हैं जो पीछे हो गए हैं कोविड के चलते. तो उनको सरकार को मदद करना है, और वो तभी हो सकेगा जब दूसरे सेक्टर जो अच्छे कर रहे हैं वो और अच्छा परफॉर्म करें, वहां से रेवेन्यू राजस्व सरकार को मिले. और अगर सपोर्ट की जरूरत पड़े या दूसरे जो मुद्दे आ रहे हैं डिस्ट्रप्टिव, वहां पे सपोर्ट अगर चाहिए तो सरकार के पास वो एम्यूनिशन, वो गन पाउडर होनी चाहिए ताकि वो एक्ट कर सके. तो आपने मुद्दे डिस्ट्रप्टिव जो जिनकी बात की वो तो अभी भी बने ही हुए हैं. यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट भी जारी है, एंड कोविड कर्व्स भी फिर से चीन ने लगाए हैं. सो आपको लगता है कि चैलेंज अभी भी बना हुआ है? बिल्कुल. और आप पाएंगे कि तकरीबन
तकरीबन 2022 जहां तक मेरा अब तो रह ही गए हैं आपके 6 महीने, 6 से भी कम महीने, और ये काफी चैलेंजिंग रहेगा, चाहे वो हमारे कमोडिटी इंपोर्ट्स जो हम कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, चाहे वो तेल हो, कोयला हो, दूसरी गोल्ड के ऊपर, सोने के ऊपर सरकार ने कुछ कदम उठाए, तो ये चैलेंज बना रहेगा। और सोनू, इसमें डबल चैलेंज है। एक तो आपकी जो रुपए की जो मुद्रा का जो वैल्यू है, मूल्य है, उसका एक चैलेंज आ रहा है, दूसरा मुद्रास्फीति। ये दोनों ऐसे चैलेंज हैं जो एक विदेशी निवेशक को पसंद नहीं आते हैं। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कुछ हद तक जो हॉट मनी फ्लोज हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फ्लोज हैं इंस्टीट्यूशनल, वो थोड़े से बाहर गए। पर आप पाएंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ महीनों में, जब थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगा एंड डिसरप्शन कम हो जाएगा, फिर वापस हम जैसे लोग उम्मीद करते हैं कि वो संतुलन दोबारा बरकरार हो जाएगी। There is this marginal easing of inflation figures, I think from 7.04 to 7.01. Do you see this as a trend? Because the other pressures are still on, prices are increasing, and I think this could be maybe transitional. Your opinion on this, because of duty cuts that have been put in, because of other restrictions, export and import restrictions which the government has put, and prices are increasing. In fact, the weatherman has invariably been proved wrong, and we have extreme monsoons, we have had heat waves. So what do you see? How do you see that? Well, it's going to be somewhere in between. You know, the government is doing what government should do, and they'll keep finding out ways where you don't want prices to go out of control. You know, yes, prices need to go up. In a healthy economy, they will always go up. If they are not going up, it's an unhealthy economy, like in Japan and some other places. But if they grow too fast and not in sync with the growth of income, then people are going to have a problem, especially those in the lower income brackets. So I think what you're going to see is some of these supply shocks and supply disruption, they're going to get sorted out over the next 5, 6, 7 months. They're going to get sorted out. But because of the inflation, people are going to moderate their demand. So somewhere between 6, 7, 8 months, you're going to somewhere, say around January, February, you would not be talking about some of the things that are giving angst to the markets or concern to the markets, but it will be, the whole thing will settle down at a lower level, because some of the demand is obviously going to get eroded when inflation is high. It's a fact of life, but that doesn't mean India is going to do badly. It's just going to be that our ambition of growing very fast and clocking extremely high growth rates, that may not happen, and you're already seeing some of those figures getting moderated. Right. जैसा आप कह रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं, हम देखते हैं कि वो हमेशा ग्रोथ और इन्फ्लेशन की फिगर्स को देख के फैसले लेते हैं। वो हमेशा कहते हैं डेटा डिपेंडेंट उनके डिसीजंस होते हैं। सो आईआईपी के जो फिगर्स आए हैं मई के, 19.6% ग्रोथ है। जैसा भी हमने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग, सब में बहुत ही हेल्दी ग्रोथ दिखाई दे रही है। एंड इन्फ्लेशन भी भले ही 0.03% ही नीचे आया, लेकिन एक डाउनवर्ड ट्रेंड है। आपको क्या लगता है कि क्या आरबीआई की जो एक मॉनेटरी पॉलिसी एकोमोडेशन वो कम कर रहे थे, उस पर कुछ असर पड़ेगा? बिकॉज हम देख रहे हैं कि चीन, जापान, अभी भी उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सपोर्टिव ही बनी हुई है। देखिए, अगर आरबीआई को ऐसा लगने लगता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर पड़ रहा है, मतलब नरम होता चल रहा है, एंड हमारे मतलब एम्प्लॉयमेंट में इश्यूज आ रहे हैं, ग्रोथ अगर नेचुरली मॉडरेट करेगा तो, या कुछ सेक्टर्स अनइवनली इम्पैक्टेड हो रहे हैं जितने विश्व में, तो तब तो आप समझ सकते हैं, जो कि आपने चीन में देखा कि पहले वो रेट हाइक्स उन्होंने पहले चालू किया, अमेरिका से काफी पहले चालू किया, फिर उन्होंने मॉडरेट करना शुरू किया क्योंकि उनको सपोर्ट करना था। तो ये तो तब होगा जब अगर आप नरमी देखते हैं। और वही सोनू, एग्जैक्टली वही, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश सारे सेंट्रल बैंक वही कर रहे हैं। सप्लाई साइड क्योंकि वो मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके बॉर्डर के बाहर जो हो रहा है उसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। आप लोगों को मनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो आप कंट्रोल क्या कर सकते हैं? डिमांड का साइड कंट्रोल कर सकते हैं। वही सारे सेंट्रल बैंक अनफॉर्चुनेटली कर रहे हैं। और एक बड़ा शक्तिशाली सेंट्रल बैंक अगर करता है तो बाकियों को फॉलो करना ही पड़ेगा, उनके पास चॉइस नहीं है। तो आपको लगता है कि आरबीआई का जो रेट है वो जारी रहेगा, हैंड फोर्स हो जाएगा? मुझे
ऐसा लगता है। अगर बीच में कोई और घटनाक्रम ऐसी आ जाती है जो कि अनफेवरेबल है, तभी जाके ये चेंज होगा, नहीं तो ये एक ट्रेजेक्ट्री बनी हुई है। जैसे ही पर ये मैं बताता चलूं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही उनको लगेगा, सारे सेंट्रल बैंक में से किसी को भी लगेगा कि उनके देश में नरमी आ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ में इफेक्ट हो रहा है, उसी वक्त वो उसको पॉज करेंगे, स्लो डाउन करेंगे। और जैसे ही ये देखेंगे, क्योंकि मार्केट्स को इतनी अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी की आदत पड़ चुकी है, लत लग चुकी है, एक स्टेरॉइड की लत लग चुकी है, कि वो देखते ही वो उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे ही अगर कभी उनको लग रहा है कि नहीं, फेडरल रिजर्व कोई ये बात नहीं कर रहा, रेट हाइक इसलिए बात की जा रही है कि उन्हें लगता है कि कहां जाके पॉज होगा और फिर खरीदारी लार्ज स्केल में शुरू होगी। आप अगर कमेंट्री देखें, स्पेशली अमेरिकन मार्केट्स एंड यूरोपियन मार्केट्स, आधे लोगों की कमेंट्री इस तरफ ही जा रही है, वो इसलिए वो दूसरी चीजों के बारे में उतनी बात नहीं कर रहे हैं। So that means it's the lens, it's like a race for growth. The lens through which all central banks are looking at their economies is growth. That is the overshadowing and the paramount this thing. First, they're going to try to contain inflation, and if it affects growth, then they'll pause. That's what I would think. Right. And there are lots of people like me who think like that. Right. इस चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से विराम के बाद। एक जरूरी संदेश और फिर मार्केट मंत्र जारी रहेगा। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। इससे पहले कि हम शेयर बाजार की खबर लें, आपको लगता है कि जो कल यूएस के इन्फ्लेशन फिगर्स आने वाले हैं वो शायद इक्वली इम्पोर्टेंट होंगे या शायद ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होंगे? बिल्कुल, और पूरी दुनिया की निगाहें उस तरफ टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर वो बरकरार रहती, जो कि उम्मीद की जा रही है, फिर ये लोग तो मान के चल रहे हैं, मार्केट्स ने बेक करके रखा हुआ कि 75 बेसिस पॉइंट फिर से इंक्रीज की उन्होंने बेक करके रखा हुआ है। तो फिर इसका मतलब उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसमें कोई चेंज नहीं आ रही है, और जैसे ही वो करेंगे बाकी जो है उनका अलग अलग लेवल पर अनुसरण करेंगे। जी, देखते हैं कि शेयर बाजार में आज कैसा प्रदर्शन रहा। सेंसेक्स और निफ्टी में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज हुई। दोनों सूचकांकों में ये गिरावट वैश्विक बाजारों में मंदी के बीच आई। सेंसेक्स 53,900 के नीचे और निफ्टी 16,100 के नीचे बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.94% की गिरावट से कुल 509 अंक कम होकर 53,887 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.97% की मंदी से 158 अंक कम होकर 16,058 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां गिरावट तुलनात्मक रूप से कम थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.51% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.52% की गिरावट दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today declined around 1%. Both stock indices fell amid negative global markets. The Sensex closed below 53,900 points, while the Nifty finished below the 16,100 level. The Sensex declined 509 points or 0.94% to finish at 53,887. The Nifty also slipped 158 points or 0.97% to end at 16,058. In the broader market at the BSE, the mid-cap fell 0.51%, while the small-cap index ended 0.52% down. In the Sensex pack, 3 companies posted gains, while 27 logged losses. NTPC was the top gainer as it climbed 1.9%. Bharti Airtel added 0.3%, and Bajaj Finance ended up 0.2% up. On the other hand, Infosys tumbled 2.3% and Nestle India plunged 1.9%. Power Grid declined 1.7%. In sectoral indices at the BSE, 4 sectors gained while 15 witnessed losses. Utilities index jumped 1.3%, while power and telecom both climbed 1.2% each.
On the other side, IT index declined 1.3%, while tech and metal indices fell 1.2% each. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,436 companies gained, while 1,871 fell. Shares of 160 companies remain unchanged. Udayan, what do you think of the market today? Yeah, there are things which obviously are not enthusing the markets. They wanted to take a look at the inflation figures. They will probably are waiting for the Fed decision yesterday. There are things, it's one of those days, it's like a human being waking up and not feeling great about that day, So on that day, things might be just normal, but there are things that are happening that were obviously there the previous day or maybe a week before. It's just making you not feel so good. It's one of those days. So the COVID has COVID restriction in China, the Ukraine conflict. All these things are there. I mean, they were there when the markets were going up. But just on that day, people are not feeling great about it, and there might be some tactical plays. And in between, you have this a TCS kind of a result coming in. You're not feeling that great about it. Then some of the other results come in, and you see a few things here and there. So it's one of those days when even while the long-standing things are going on, it's just that market is, a little circumspect or maybe, not feeling good about certain things. So do you feel that, there are many investors and many of them small ones sitting tight, waiting actually for the market to recover properly or stabilize, and they've been sitting for some time, obviously not wanting to trade. Do you feel that the current, risk-averse nature of many of us who are sitting is also affecting the market? Their lack of participation is being felt in the market? It's not there in such a big way. If you look at some of the mutual fund data, it's still showing that people are investing. So that means it's from equities, it's moving more into mutual funds. Direct, yeah. Because if you see, there was a report that fresh demat accounts opening, they have settled down, they've slowed down. And I wouldn't be surprised, normally when markets go through upturns, lots of demat accounts get opened and they don't get used at all. So it's not an unusual thing. If you don't invest in a market, that's not a great idea. I mean, so you have to find out a way where you keep investing, because staying out is not an answer. You have to stay invested. So number one, if you have invested, just stay invested. Unless you just have learned that you have invested in some investment which are terrible, and you just got to know about it. That's actually reflecting very poorly on your investing process. If that is not the case, you might as well stay invested. What are the other smart things you can do? Invest in the index. So buy an index fund or an ETF, diversified, say in Nifty 50 or a Nifty Next 50. That means what you're doing, you're investing in equity class as a whole. 50 stocks you're banking on. How wrong can you go? I mean, the best performing guys will be there in the index always. So it's not about staying out, or getting out and getting into fixed deposits. Those are bad decisions. You should not be doing that. Typically, after some downturns, we haven't really gone through a downturn. Okay. This is okay. After if you compare today's index about a year back, we're still up year to year. So it's staying out is not an answer. Idea is to rejig your portfolio and smartly move around. So Udayan, briefly, जो IIP और CPI के लेटेस्ट फिगर्स आए हैं, जो भी हमने शुरू में डिस्कस किए, उनका इम्पैक्ट आपको लगता है कि मार्केट सेंटिमेंट पे पॉजिटिव रहेगा? हाँ, क्योंकि कोई नेगेटिव सरप्राइज तो नहीं है, क्योंकि जहां तक एस्टिमेट्स दी जा रही थी, बताई जा रही थी, इसमें रेंज में ही है। और अगर मान लीजिए किसी को कुछ नजर आ भी जाता है, वो दिन भर का हलचल होगा, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा खुलासा हो गया जो लोगों को पहले पता ही नहीं था। तो एलिवेटेड लेवल में लोगों को मालूम था, लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि रेट हाइक्स होंगी और उससे थोड़े से डिमांड में इरोजन होगा, कंप्रेशन सा होगा, प्रॉफिट मार्जिन में कंप्रेशन होगा, ये सब लोग मान के चल रहे हैं। उस हिसाब से बिजनेसेस और
फैमिलीज भी एडजस्ट कर रही हैं, तो ये होगा। आइए चलते हैं करेंसी की ओर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे की गिरावट के साथ 79 रुपये 60 पैसे प्रति डॉलर के अब तक के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.15% की बढ़त से 108.18 पर था। सो मोर ऑफ डॉलर स्ट्रेंथ देन रुपी वीकनेस, यू कुड से। बिल्कुल, आप अगर देखें रुपए और यूरो, जो कि हम कभी चर्चा होती नहीं है, कम से कम 10 रुपए ने गेन किया है यूरो के अगेंस्ट, तो यूरो भी डेप्रिशिएट कर रहा है जबकि पैरिटी में आ गया है। तो ये जो हमारी जो प्रेशर है सिर्फ रुपए के ऊपर नहीं है, इमर्जिंग मार्केट सारी करेंसी से यूरो के ऊपर है, तो ये हमें ये चैलेंज बना रहेगा। जी, अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। वैश्विक शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख था। केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनी नीति और कड़ी करने की संभावना और विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं के स्वास्थ्य को लेकर चिंताओं के बीच निवेशकों की धारणा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जापान का निकेई सूचकांक 1.8% की गिरावट में रहा और हांगकांग के हैंगसेंग में 1.3% की मंदी दर्ज हुई। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी सूचकांक दोनों में 1% की गिरावट रही। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.5% की बढ़त दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां भी दिन के कारोबार में गिरावट का रुख था। लंदन का फुटसी 0.4% के नुकसान पर था। जर्मनी के डैक्स में 0.7% की गिरावट थी और फ्रांस का कैक 0.2% के नुकसान पर था। A quick look at the U.S. markets. U.S. stocks lost ground yesterday amid lack of catalysts. The U.S. equities fell mainly due to losses in technology, consumer goods and consumer services sectors. Investors remained cautious awaiting crucial inflation data this week. The Dow Jones Industrial Average Index slipped 0.5%, the S&P 500 declined 1.2%, and the Nasdaq Composite plunged 2.3%. Oil prices. Global crude oil prices today fell as fresh COVID-19 curbs in China and fears of a global economic slowdown weighed on the outlook for fuel demand. The crude prices fell around 4.5% in intraday trade. Brent crude was trading at $102.30 per barrel, while WTI crude prices were at $99.10 per barrel. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना आज 30 रुपए की बढ़त के साथ 50,675 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। हालांकि जुलाई अनुबंध वाली चांदी 625 रुपए की गिरावट से 56,300 रुपए प्रति किलो पर थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर दिवसीय कारोबार में सोना मामूली बढ़त के साथ $1,734.90 प्रति आउंस पर था, लेकिन चांदी गिरावट दर्ज करती हुई $18.80 प्रति आउंस पर थी। उद्यन, ऑयल के प्राइसेस आज 4.5% प्रतिशत गिरे हैं, $102.30 पर आए हैं। पिछले सप्ताह हमने देखा $100 के नीचे आ गए थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, हमारा कम से कम $25 ऊपर है जहां से जो प्राइस हमारे लिए होना चाहिए, और जितनी उसमें सेविंग्स हो सके उतनी बेहतर है। सप्लाई ऑगमेंट हो रही है, बेहतर हो रही है, पर उस लेवल पे नहीं हो पाएंगी। इसलिए डिमांड साइड से जो आकलन किया जाएगा ऑयल प्रोड्यूसर्स, उस हिसाब से जो प्राइसिंग होगी वही रिलीफ का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। जहां पे हमें आपको लगता है कि रिसेशन फियर्स का एक फायदा भी हो रहा है? बिल्कुल, सिल्वर लाइनिंग इवेंचुअली वो ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि सप्लाई में देखिए न्यू ड्रिलिंग, रिफाइनिंग, वहां पे एक लिमिटेड अपसाइड है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उदयन। आप आए, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Yes, we'd like to thank senior business journalist Udyan Ray. And thank you, Udyan. And now, before we close, a reminder of the headlines. Industrial production rises 19.1% in May this year. Retail inflation eases to 7.01% for last month. Sensex falls below 53,900 points. Nifty slips below 16,100 level. Rupee dips to 79 rupee and 60 paise against the US dollar. And Brent crude prices declined 4.5%. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.